کی کتاب دوسرا باب پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک۔ مسیحی تہواروں میں تین بڑے میجر تہوار ہیں۔ نمبر 1 آپ جانتے ہیں کرسمس، یسوع مسیح کا پیدا ہونا، اور اس کے بعد یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اور اس کے بعد تیسری بڑی جو عید ہے وہ روح القدس کے نازل ہونے کی عید ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو میں اس بات کے لیے آپ کو انکریج کروں گا کہ کمنگ ایئر، آنے والے سال میں آپ اسے اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں گے، ہم سب مل کر، جیسے ہم کرسمس اور یسوع کے جی اٹھنے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اعمال کی کتاب دوسرا باب پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک۔ ہاللیلویا۔ ذرا اس بچے کو کنٹرول کیجیے گا برائے مہربانی۔ اعمال کی کتاب دوسرا باب پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے۔ آپ سب ایمانداروں کے لیے یہ کلام لکھا ہے، غور سے سنیے گا۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آئے اپنے سر جھکائے، ہم دعا مانگے۔ خدا کے روح کے لیے زوردار تالیاں بجائے۔ ہاللیلویا۔ اعمال کی کتاب دوسرا باب پہلی 4 آیات، اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت آیت اس کے ساتھ ہے۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، جو باہر تھے 120 کی جماعت سے جو باہر تھے، مگر اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں، اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے کہ سب روح القدس سے معمور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ایسے تو خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا جیسے آپ بیٹھے ہیں، طرفداری نہیں ہے، یہ خدا نے دینا ہے، میں نے نہیں، یہ خدا نے برکت دینی ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے ایکٹیو ہوں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ عید پینتیکوست ہم فوراً یہ کہتے اور سمجھتے ہیں کہ پینتیکوست کا مطلب ہے روح القدس۔ پینتیکوست کا مطلب روح القدس نہیں ہے۔ پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن، یسوع کے جی اٹھنے کے بعد 50ویں دن میں
یسوع مسیح کے بعد روح قدس کا نزول عید پینتیکوست کے دن ہوا۔ اب عید پینتیکوست کیا ہے؟ عید پینتیکوست کا مطلب اور معنی جو پرانے عہد نامہ میں ہے، سمجھ لیجئے گا دھیان سے۔ پہلے پھلوں کی کٹائی کی عید جو ہے یہ پینتیکوست۔ اب نئے عہد نامہ میں جو مسیحی اور ایماندار اس بات کو جانتے ہیں اور کلام شہادت دیتا ہے کہ عید پینتیکوست کے دن جو روح قدس آیا، اب عید پینتیکوست کے دن ہی روح قدس کیوں؟ دو بڑی باتیں اس میں ظاہر ہوئی جن کا ظہور ہوا۔ نمبر ایک کہ پینتیکوست کی عید کا مطلب تھا کہ پہلے پھلوں کی کٹائی کی عید۔ جب روح قدس زمین پر آیا تو یہ ایمانداروں کی جو یسوع مسیح میں پہلے پھل ٹھہرے، ان پھلوں کی کٹائی یعنی کہ ان کے چناؤ اور انہیں طاقت اور زور دینے کا سبب ٹھہرا۔ دوسرا، عید پینتیکوست، اس بات کو جان لیجئے گا کہ سب سے پرانی ہسٹری کلام مقدس کی ہے، اس سے پرانی کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ عید پینتیکوست دوسرا سبب، چرچ کی بنیاد، چرچ کے آغاز کا دن جو ہے وہ روح قدس کے آنے کے ساتھ ہوا۔ ہاللیلویہ۔ اب ایمانداروں کو کاٹا گیا، پہلے پھل وہ بنائے گئے، اور وہ پہلے پھل کیسے ٹھہرے؟ سب سے پہلا چرچ، سب سے پہلی کلیسیا، روح قدس نے انہیں بلیس کیا، روح قدس نے انہیں انائٹ کیا، روح قدس نے انہیں زور بخشا، اور پہلا چرچ اس دن تخلیق ہوا جس دن روح قدس اس زمین پر جاری ہوا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب جگہ جگہ یہ گواہیاں اور شہادتیں ملتی ہیں کہ باپ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے روح کو بھیجے گا، روح قدس آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا روح قدس پرانے عہد یا پرانے عہد کے لوگوں کے اندر یا اس وقت میں بھی موجود تھا؟ اگر موجود تھا تو پرانے عہد نامہ میں ہمیں کہاں یہ ذکر ملتا ہے کہ روح قدس کے وسیلہ سے ایسا کام ہوا اور روح قدس اس طرح سے موجود ہے؟ اس بات کو جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ہم پرانے عہد اور پرانے عہد کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نئے عہد میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کس طرح سے اسے لینا ہے۔ وہ جو 120 کی جماعت ہے وہ اس بات کو جانتی ہے، یسوع نے انہیں بتایا، سمجھایا کہ پرانے عہد میں باپ کا روح کس طرح سے کام کرتا تھا، اور انہیں خبر تھی، اسی لیے وہ روح قدس کے لیے ٹھہرے تھے۔ لیکن عید پینتیکوست کے دن روح قدس اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک یہ زمین ہے اس وقت تک کے لیے روح قدس اب اس زمین پر مستقل طور پر رہنے کے لیے نازل ہونے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پرانے عہد میں روح قدس آتا تھا، ایسا نہیں کہ روح کام نہیں کرتا تھا، روح قدس کا کام تو ابتدا سے ہی جاری ہے، جہاں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش
کرتی تھی، لہراتی تھی، آتی تھی اور جاتی تھی، اس طریقے سے وہ پانیوں پر. نہ صرف ابتدا بلکہ اس کے بعد بھی غور سے سمجھ لیجئے گا کہ خدا کا روح نبیوں پر، پیغمبروں پر، لیڈرز پر جاری ہوتا تھا اور روح القدس کے وسیلہ سے کام ہوتے تھے. گنتی کی کتاب 11واں باب ارشاد نکالیے. میں نے بھی جب اس حوالے کو پڑھا کئی دفعہ پڑھ کے گزر گئے، لیکن جب سمجھا تو حیران ہوا میں خدا کے حضور. گنتی 11واں باب قرآن احکامہ میں سے پیدائش، خروج، احوال، گنتی، پرانے عہد کی پہلی 5 کتابوں میں سے چوتھی کتاب گنتی 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے دیکھیں کیا لکھا. سنیے گا، لکھا ہے گنتی 11:24 سے پڑھنے لگا ہوں. تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائی اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گردا گرد کھڑا کر دیا. تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان 70 بزرگوں میں ڈالا. چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی. خدا کا روح آیا، کام کیا اور پھر وہ باپ کے پاس چلا گیا. 26ویں آیت کو دیکھیں. پھر ان میں سے 2 شخص لشکرگاہ ہی میں رہ گئے اور ان کا نام الداد اور دوسرے کا نام مداد تھا. ان میں بھی روح آئی، یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لیے گئے تھے، پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکرگاہ ہی میں نبوت کرنے لگے. تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الداد اور مداد لشکرگاہ میں نبوت کر رہے ہیں. ہاللیلویہ. اب یہ نبوت ہے کس کے وسیلہ سے؟ خدا کے روح کے وسیلہ سے. کس کے وسیلہ سے؟ خدا کے روح کے وسیلہ سے. آپ لوگ ایماندار ہیں. آپ لوگوں سے کوئی اگر یہ پوچھ لے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کا روح صرف پینتیکوس کے دن ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی نبیوں پیغمبروں کی زندگیوں میں کام کیا کرتا تھا. اب خدا کا روح جو ہے وہ کس طریقے سے پرانے عہد کے نبیوں میں کام کیا کرتا تھا. اگر ہم پرانے عہد میں جائیں تو موسیٰ کو دیکھ لیں. موسیٰ کو خدا کا روح جو ہے وہ آگ کی صورت میں نظر آیا. جہاں پر موسیٰ نے اس جھاڑی کو دیکھا جو جل تو رہی تھی، آگ تو لگی تھی لیکن وہ خاک نہ ہوتی تھی. پھر خدا نے موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کے ساتھ یہ جو لکھا ہے نا کہ آگ کا ستون، یہ خدا کا روح تھا. پھر خدا نے ابراہیم پر اپنے روح کو جاری کیا کیونکہ ابراہیم کے پاس اور کوئی نشان نہ تھا، لیکن وہ اس ملک تک پہنچا اور اس کی جو ایمان کی دوڑ تھی اس میں خدا کے روح نے اس کی مدد کی. یعقوب جو بیتل میں آیا، جس نے اس پتھر پر جہاں اس نے خدا سے رویا نہیں، اس نے جہاں اسے مسح کیا وہ تیل خدا کا روح تھا. پھر یشوع نے اس کے پاس روحانی بلیسنگ تھی. نہ صرف وہ ایک خوبصورت اور سپر لیڈر تھا
बल्कि उसके पास खुदा की दी हुई रूहानी आंखें थी और उसने वो आंखें खोलकर अपने सिपाहियों में से एक को दिखाया कि देख गिरदा गिर्द कितने तादाद में खुदा के आसमानी रथ और लश्कर यहाँ पर खड़े हैं। उसने कैसे देखा? खुदा के रूह से। हालेलुया। फिर शमशून को देखे, उसके अंदर जो ताकत थी वो ताकत किसकी थी? वो ताकत खुदा के रूह की थी। हालेलुया। पुराने अहद में भी नबूवतें होती रही है, पुराने अहद में भी रूहानी काम होते रहे हैं, पुराने अहद में भी शिफा होती रही है, पुराने अहद में भी लोग कलाम करते रहे हैं, नबियों ने कलाम किए हैं। आप हिस्किय्याह को जानते हैं जिससे खुदा ने कहा कि जा और इस मौत की हड्डियों की वादी में जा और नबूवत कर। और उसने खुदा के रूह से भर कर नबूवत करना शुरू की, कलाम करना शुरू किया और सूखी हड्डियों में जान आ गई। हालेलुया। खुदा ने अपने रूह को अपने नबियों पर जारी किया, लेकिन वो खास वक्त के लिए आते और फिर चलते रहे। लेकिन आज ईद पेंतिकोस्त का ये जो दिन है, आज बाइबल मुक़द्दस ये गवाही देती है कि मैं तुम्हें तन्हा और यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, बाप के रूह को जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। आज खुदा का रूह जो है वो आप लोगों के साथ है, बल्कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मैंने उस रूह को तुम्हारे साथ कर दिया, बल्कि वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा का रूह जो है, समझ लीजिएगा, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ये जो ईद पेंतिकोस्त आज हम इस चर्च, इस कलीसिया में मना रहे हैं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि हर ईद पेंतिकोस्त को हम रूह से भरेंगे। तो जो पहला रूह भरा था वो कहाँ गया? ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि हर ईद पेंतिकोस्त को हम रूह से मामूर होंगे। नहीं, ईद पेंतिकोस्त यादगारी की ईद है। और इस ईद का मतलब क्या है? इस ईद का मतलब है कि उन पुराने अहद के नबियों को देखें कि खुदा का रूह उनकी जिंदगी में कैसे काम करता था। हम भी तो कई सालों से रूह कुदस से मामूर होते चले आ रहे हैं, क्या खुदा का रूह हमारी जिंदगी में ऐसा काम कर रहा है? अगर नहीं तो आज याद करें कि क्यों खुदा का रूह हमारी जिंदगी में वैसे काम नहीं कर रहा जैसा ईद पेंतिकोस्त के दिन पुराने अहद में रूह कुदस जब नाजिल हुआ था। आपका जो ईद पेंतिकोस्त का दिन था जब खुदा का रूह आपके ऊपर आ ठहरा था, आपने जुबानों में दुआ की, आपने आंसुओं में दुआ की, आपने नबूवत के लिए जुबान खोली, आपके अंदर से खुदा के रूह ने कलाम जारी किया। क्या यादगारी है हमारे पास? याद करें कि क्या उसी चीज को लेकर रूह के वसीला से हम चल रहे हैं। अगर नबूवत हुई थी तो ईद पेंतिकोस्त के उस संडे के बाद जिस दिन खुदा ने मुझे मामूर किया, क्या उसके बाद भी मैं नबूवत करता रहा? अगर नहीं तो जान लें कि खुदा के रूह का नज़ूल का मतलब है कि जब तक खुदा का रूह उन नबियों पर था वो नबूवत करते रहे, और जब तक उनकी जिंदगी थी वो फिर नबूवत नहीं करते रहे। आज हम ईद पेंतिकोस्त यानी कि उस दिन की यादगारी की ईद मना रहे हैं। ये 120 की जमात की ईद नहीं है, ये हमारी ईद है। हालेलुया। ये किसकी ईद है? हमारी ईद है। और याद करें कि आपका ईद पेंतिकोस्त का दिन कैसा था और अब आपकी जिंदगी कैसी है। अगर तब्दीली नहीं, अब तक तो हमें, मैं आज बार बार आपको इनकरेज कर रहा था कि आज सिर्फ रूह कुदस से मामूर नहीं, रूह के दूसरे दर्जे में जाएंगे। रूह कुदस का दुगना आज हम लेंगे। जैसे पुराने अहद
मरतबा में अलीशा ने उसके रूह का, और रूह खुदा की थी। ये जो बाइबल में लिखा है ना, ये जो हवाला आपने पढ़ा है, खुदा ने कहा कि ये जो रूह मूसा को खुदा ने कहा जो तुझे दी है, इस रूह में से मैं तेरे लोगों को दूंगा और नबूवत करेगी। एलिया के ऊपर किसकी रूह थी? खुदा की रूह थी। बोले एलिया के ऊपर किसकी रूह थी? जोर से बोले एलिया के ऊपर किसकी रूह थी? और उसी रूह का दुगना, क्योंकि अलीशा देखता आया था कि इस पर खुदा का रूह कैसे काम करता है, इसलिए उसने कहा कि मुझे तेरे रूह का दुगना चाहिए। दूसरा पोर्शन, डबल पोर्शन चाहिए मुझे रूह कुदस का, दोहरा मसा चाहिए मुझे रूह कुदस का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, अमाल की किताब अपने हवाले में है। जी कोई आयत पढ़ेगा? पहली और दूसरी, उन्हीं देर में पानी थी। पहली और दूसरी आयत को पढ़ने, बुलंद आवाज से। जी पहली और दूसरी आयत। और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे टूट गया और इन्हें आग के शोला की सी बढ़ती हुई जुबानें दिखाई। थैंक यू। बाइबल में लिखा है, गौर कीजिएगा जरा मेरी तरफ, वो सब एक जगह जमा थे, जैसे आज हम जमा है, कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। ये एक चीज है। कौन सी? आंधी। फिर लिखा है तीसरी आयत में, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। दूसरी चीज कौन सी है? आग, शोले। पहली चीज कौन सी है? आंधी। मेरे साथ बोले, पहली चीज कौन सी है? आंधी। और दूसरी कौन सी चीज है? आग। कहीं आग लगी हो, बहुत ज्यादा आग लगी हो, थोड़ी देर के लिए सोचें, कहीं बहुत ज्यादा आग लगी हो। गुजरे दिनों चुरंगी चेस शॉपिंग मॉल है, वहां पर आग लग गई और आग पर काबू नहीं पाया जा सका। उसकी वजह थी, मैं आपको बताऊं। इमेजिन करें कि कहीं बहुत ज्यादा आग लगी हो और ऊपर से आंधी चलना शुरू हो जाए, क्या होगा? आग ऐसी खतरनाक हो जाएगी कि आंधी की वजह से आग फैलना और खतरनाक होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जो रूह कुदस को जानते और समझते हैं, ये असल में ईमानदारों के अंदर वो आग है, वो आंधी है। हमारे अंदर आग लगती है लेकिन हम उसे हवा नहीं देते। याद रखें, केमिस्ट्री लेवल के हिसाब से, साइंटिफिक रूल के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, अगर हम कहीं आग लगा दें और उसके ऊपर कोई चीज रख दें, उसे हवा ना मिले, आग फौरन बुझ जाएगी। ठीक है? आप घर में कैंडल जलाइएगा और उसके ऊपर गिलास रख दीजिएगा, देखिएगा थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी। हालांकि हवा आग को बुझाती भी आपने देखा होगा, लेकिन उस आग को बुझाती है जो कम होती है। आपके अंदर खुदा के रूह की आग लग चुकी है। इस आग को आज हम भड़काएंगे और आज हम खुदा से जोर की आंधी को मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें नींद आ रही है जरा वो जोर से बोले हालेलुया। भाई इश्तियाक और बहन श्लोमी, आप जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बहन जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हवा दे जरा, आप हवा देंगे तो आपके अंदर से ये शोले जारी होंगे। जोर से बोले हालेलुया,
से इसे पंप अप करें, फिर आपको पता चलेगा कि बाइबल मुकद्दस में रूह कुदस का जो बपतिस्मा लिखा है, रूह कुदस का जो बपतिस्मा लिखा है, यूहन्ना ने ये नबूवत की। रूह कुदस नाज़िल नहीं हुआ था, यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले की बात कर रहा हूं। उसने ये नबूवत की क्योंकि वो माँ के पेट से ही रूह कुदस से टच उसको मिला था, मस्सा हुआ था वो, और उसने ये नबूवत की, मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ। वर्ड है मैं तुमको पानी से, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे ज्यादा जोरावर है, वो तुमको आग से, रूह कुदस और आग से क्या देगा? बपतिस्मा देगा। आप समझते हैं रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है? रूह कुदस का बपतिस्मा क्या है? अगर हम इसे इस तरह से समझ लें तो गलत नहीं होगा कि किसी शख्स को लेकर जैसे पानी में पूरा उससे डुबोया जाता है, क्योंकि ये जो बैप्टिज्म है ये ग्रीक वर्ड बैप्टिजो से, और बैप्टिजो का मतलब है इमर्ज करना, डुबो देना, पूरा तर करना, थोड़ा नहीं आधा नहीं, पूरा तर करना। और रूह कुदस के बपतिस्मे का मतलब ये है कि यीशु मसीह आएगा और वो तुम्हें रूह कुदस और आग से, अब यीशु तो आसमान पर चले गए, यीशु के जाने के बाद रूह कुदस आया, अब यीशु कैसे रूह कुदस का बपतिस्मा देता है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है मुझसे ज्यादा जोरावर है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई लेता है और हमें यीशु मसीह के अंदर पूरा, किसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर डिप करता है? यीशु मसीह के अंदर वो हमें डिप करता है। और यीशु मसीह है कौन? वो खुदा का बेटा है। और खुदा है क्या? खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु ने कहा कि सिर्फ बेटा है जिसने बाप को जाहिर किया। और उसने कैसे जाहिर किया? आज ये जो लोग आग को महसूस करते हैं ना अपने अंदर, ये आग वही बाप है, वही बेटा है और वही रूह कुदस है। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम सुनाओ या दुआ कर रहे हैं? रेडी है? अगर आप रेडी है तो आज आपने हवा देनी है अपने आप को। फायर है, आग मौजूद है, लेकिन आज अपने आप को आपने हवा देनी है। तो अमाल की किताब 2 बाब 4 आयत में लिखा है कि जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। अब हम सब जमा है, अब करना क्या है? एप्लीकेशन ले लें कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई। अब हमें साउंड की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ देखिए, हमें साउंड की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी खुदा का रूह जारी और सारी है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने सामूएल से कहा कि अगर तू मुझे जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। वो जिंदगी का पानी क्या था? उसकी गवाही आई है। जिंदगी का पानी क्या था? वो खुदा का रूह था। यूहन्ना 4 बाब का ये हवाला है और यूहन्ना 7वें बाब के इस हवाले को खोला गया है कि यीशु मसीह ने जिस पानी की बाबत बात की थी वो खुदा का रूह कुदस था। हालेलुया। तो हमने करना ये है कि रूह कुदस जारी है, सिर्फ हमें यीशु से मांगना। और ये नहीं मांगना कितने लोग रूह से मामूल हैं, कितने लोगों के पास साइन है कि मुझे खुदा ने अपने रूह से मामूल किया? हाथ खड़ा करें, शाबाश, दलेरी के साथ। आपके पास मुख्तलिफ साइन है। आंसू बहाकर दुआ करना, दुआ की बरकत, नेमत, गैर जुबानों में दुआ, नबूवत, दुआ करते हुए कलाम का बार बार आपके अंदर आना, ये खुदा के रूह का निशान है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, कलाम ये है कि नए अहदनामा में अब खुदा की रूह की मर्जी क्या है कि ना सिर्फ इनको हम सिर्फ रिसीव करने के लिए, हासिल करने के लिए ले, बल्कि हमने करना क्या है? ग्रंथियों के खत में रूह कुदस की 9 नेमतें,
9 तासीरें और 9 खिदमतें लिखी हैं। कितनी? 9 नेमतें, 9 तासीरें और 9 खिदमतें लिखी है, और रूह कुदस के 9 ही फल आगे लिखे हैं। अब खुदा की रूह की मर्जी ये है कि आज इस पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, हम उनकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाएं, हम उनकी तरफ अपनी सोच को बढ़ाएं, ताकि खुदा हमारी जिंदगी में दुगना मसा जारी होने दे। हालेलुया। आपने ये नहीं आज मांगना कि मुझे रूह से मांगोर कर, आपने रूह की वो नेमतें मांगनी है। हवाला निकाल कर देख लेते हैं, चले अच्छा हो जाएगा, आपके जहन में बैठ जाएगा। जल्दी से ग्रंथियों, कोई मेरी मदद कर दे जल्दी से। ग्रंथियों मेरे कल 12वां बाब था, पहला ग्रंथियों जी 12वां बाब पहली आयत, जल्दी से देख ले, निकाल देना, मेरी तरफ देखें। पौलुस रसूल क्या कहता है? अब वो इससे आगे हमें लेकर जाता है, कहता है ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर हो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था, इसी तरह जाते थे। बस मैं जताता हूं, तुम्हें जताता हूं कि जो भी खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु मलाउन है, और ना कि रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की है, मगर रूह एक ही है। अब देख लीजिएगा, और खिदमतें भी तरह तरह की है, मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की है, मगर खुदा एक ही है। नेमतें, खिदमतें जो आपको चर्च में मिलती है, मुबश्शिर, एल्डर, डीकन, बिशप, ये खिदमतें हैं। और तासीरें जो असल, जो मसा आपके अंदर रहता है। अब देखिए लिखा है तासीरें भी तरह तरह की, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का जरूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, नीचे बैठो, और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुताबिक इल्मियत का कलाम। क्या हो गया? सबसे पहले हिकमत का कलाम, दूसरे को उसी रूह की मर्जी से इल्मियत का कलाम। इल्मियत का कलाम क्या है? वर्ड ऑफ नॉलेज, एक्सपर्ट होना, एग्जैक्ट नॉलेज देना खुदा के रूह की मर्जी से, और उसे डिलीवर करना। किसी को उसी रूह से ईमान की बरकत, किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज। जान लेना, परख लेना कि ये शख्स ठीक है, इसके अंदर इब्लीस की तासीर काम तो नहीं कर रही। किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। हालेलुया। फिर 14वीं आयत की पहली आयत में कहता है मोहब्बत की तालीम और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खुसूसन पेंटिकॉस्ट का दिन आज ईमानदारों के लिए है क्या? खुसूसन इसकी के नबूवत करो। अब जो नबूवत करता है, गौर से सुन लीजिएगा, फिर दुआ करने लगे। जो नबूवत करता है वो असल में उसके वसीला से काम क्या होता है? 14वें बाब की 13वीं है, पहला ग्रंथियों 14वां बाब 3री है, 14वां बाब 3री है। लेकिन जो नबूवत करता है, नबूवत के वसीला से 3 काम होते हैं। जो नबूवत करता है वो आदमियों से तरक्की, नबूवत के वसीले से तरक्की होती है, रूहानी और जिस्मानी, और नसीहत। दूसरा काम जो नबूवत करता है उसके वसीला से नसीहत होती है, पता चल जाता है। और तीसरा काम, और तसल्ली की बात कहता है। तीसरा काम तसल्ली हो जाती है कि जो खुदा ने कहा है अब वो होगा। जो बेगाना जुबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अब ये सारी बरकतें और नेमतें लिखी है,
हमने पिछले साल जब रूह कुदस को लिया तो क्या हम में आज भी वही आग है? क्या हम इससे आगे बढ़े? अगर नहीं तो आज बढ़ने की जरूरत है। आए अपनी जगह पर खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस,